Ignited Minds Tutorials, a renowned online educational platform, has recently uploaded a comprehensive video on the topic of triangles and maths geometry for Class 9 students studying under the CBSE and Maharashtra State Board. This video aims to provide knowledge and explanations to help students understand the fundamental concepts of triangles. Triangle, a polygon with 3 sides and 3 angles, is an essential topic in geometry. The video emphasizes various aspects of triangles such as types, properties, and formulas. It covers topics like types of triangles based on sides and angles, Pythagoras theorem, congruency, and inequalities in triangles. Through this video, Ignited Minds Tutorials has carefully explained these concepts using visual aids and step-by-step examples. The goal is to make learning interactive, engaging, and easy to comprehend. Students will develop a strong foundation in triangles, enabling them to solve complex problems. The video encourages students to actively participate by sharing doubts and questions, fostering a healthy learning environment. Additionally, Ignited Minds Tutorials also provides downloadable study materials and practice questions to supplement the video lessons. In conclusion, Ignited Minds Tutorials educational video on triangles and maths geometry for Class 9 is a valuable resource. For students studying under the CBSE and Maharashtra State Board, IT equips students with essential knowledge and helps them build a strong mathematical foundation. Explore the video and unlock the world of triangles and maths. ओके सो व्हेन टू साइड्स, तो ये समझ में आ रहा है। देखो इसको अपन क्या बोलेंगे, पहला कंडीशन है किसका, कॉन्ग्रुएंसी का, दैट इज साइड एंगल साइड्स। तो लिख लीजिए इसको, व्हेन टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, बहुत जरूरी है इसको समझना। इंक्लूडेड एंगल कोई भी उल्टा सीधा एंगल नहीं, दो इक्वल साइड्स और उनके बीच का एंगल, दो इक्वल साइड्स और उनके बीच का एंगल। व्हेन टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल of the other triangle, then the two triangles are congruent। तो ये दो triangles आपके क्या हो जाएंगे, congruent। ठीक है, चलिए फटाफट लिख लीजिए इसको, क्विक एवरीवन। डन ओके। तो देखिए यहां पे समझ लो दो ट्रायंगल्स हैं, क्या क्या है, ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो कोई भी दो साइड्स, जैसे समझ लो यहां पे दिया हुआ है आपको, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं ऐसा बोल दिया है। अगर मुझे दूसरे वाले स्टेप पे जाना है तो कौन सा एंगल हम पिकअप करेंगे, तो आपका ये वाला एंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल are equal to the two sides and the included angle of the other triangle, then the two triangles are congruent। ठीक है, तो इसका मतलब अपन क्या किसकी बात करेंगे, इस वाले ट्रायंगल की, ए बी सी एंड पी क्यू आर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम ओके। सो टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, साइड ए बी इज congruent to side पी क्यू। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, साइड बी सी इज इक्वल टू साइड क्यू आर। ठीक है, गिवन। तो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट बाय एसएएस टेस्ट। एसएएस टेस्ट से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, बोथ ऑफ देम आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ओके। एएसए क्राइटेरिया क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल। ध्यान दो, ये एक एंगल बीच वाला साइड और ये एक एंगल। ठीक है, इफ टू एंगल्स एंड द साइड इंक्लूडेड बिटवीन one triangle and the other triangle are equal, then these two triangles are congruent। इसको अपन ASA क्राइटेरिया बोलते हैं। ASA क्राइटेरिया मतलब क्या हो जाएगा, बोलो, एंगल साइड और ये एंगल साइड एंगल, दिस इज नोन एज ASA क्राइटेरिया। ठीक है, when two angles and the included side of one triangle
are congruent to the corresponding two angles and the included side of another triangle, then these two triangles are congruent. तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चा बाड़ी? कॉन्ग्रुएंट. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, तो आप देखो जैसे यहाँ पे ट्राइंगल, टू एंगल्स, वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल्स. तो आपका देखो यहाँ पे ए बी सी एंड पी क्यू आर बराबर पी ए सी बी एंड पी आर क्यू बराबर. ठीक है, और इसमें भाई साहब बी सी और क्यू आर बराबर, बी सी और क्यू आर बराबर, इंक्लूडेड साइड. टू एंगल्स इंक्लूडेड साइड, टू एंगल्स इंक्लूडेड साइड. इफ दी टू अगर इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. कॉन्ग्रुएंट हो जाने का मतलब क्या होगा बोलो? कॉन्ग्रुएंट हो जाने का मतलब क्या होगा? अभी सब कुछ बाकी का बराबर हो जाएगा. मतलब जो ये वाला अपन बोल सकते हैं ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे. अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये वाला साइड और ये वाला साइड भाई साहब बराबर होगा. अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये वाला साइड और ये वाला साइड भी आपका बराबर होगा. तो रिमेनिंग थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स विल बी इक्वल एज वेल. ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर? तो ये होता है आपका ASA क्राइटेरिया. तो पहला अपन ने क्या पढ़ा? SAS, साइड एंगल साइड, दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, द टू साइड्स and included angle of one triangle are equal to two sides and the included angle of another triangle, then the triangles are said to be congruent. ठीक है, यहाँ पे भाई साहब आपका दो एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द अदर, देन दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ये दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, ASA क्राइटेरिया हो गया. इन ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल PQR भाई साहब क्या दिया हुआ है आपका? देखो एंगल B और एंगल Q कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है. ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, एंगल बी और इक्वल. साइड BC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड QR, साइड BC और साइड QR आपका कॉन्ग्रुएंट है. और बोलो भाई साहब एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ये भी आपका गिवन दिया हुआ है भाई साहब. ठीक है, दिस आल्सो इज गिवन. सो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? इसी को अपन क्या बोलेंगे? ASA टेस्ट. दिस इज नोन एज ASA टेस्ट, एंगल साइड एंगल टेस्ट. ठीक है, क्लियर है? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल. अगर ये वाला एंगल होता तो नहीं भाई, ये नहीं हो सकता था. क्योंकि अगर दोनों, समझ लो हम ये बोलते तुम्हारा अटेंशन लेवल ना बहुत कम है, बहुत ज्यादा, थोड़ा सा कुछ आवाज होगा तुम, ठीक है. यहाँ पे भाई साहब समझ लो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं अपन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, और लेट्स से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है. आपको अगर ये दोनों एंगल्स बराबर दिए हुए हैं तो आप इस क्राइटेरिया को नहीं लगा सकते. ठीक है, क्योंकि ये जो कॉमन साइड है या जो इक्वल साइड है ये इन दोनों एंगल्स के बीच में होना चाहिए. ये जो इक्वल साइड है ये इन दोनों एंगल्स के बीच में होना चाहिए. तभी तो देखो ये वाला बीच में डाला गया है, ASA. ठीक है, ये साइड जो है जो इक्वल है वो दो इक्वल एंगल्स के बीच में होना चाहिए. अगर कोई दूसरा साइड होता है तो अपन इस थ्योरम को यूज नहीं कर सकते. ठीक है, सो वी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दीज थिंग्स. ठीक है, ओके, देन वी हैव SAA. तो अभी एक साइड और कोई भी दो एंगल, एक साइड और कोई भी दो एंगल, समझ में आ रहा है? फिर से बोल रहा हूं, एक साइड और कोई भी दो एंगल अगर इक्वल होते हैं तो SAA. तो दिस इज बेसिकली साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल. एक साइड और दो भी है. व्हेन अ साइड एंड एंगल एडजेसेंट टू इट एंड द एंगल ऑपोजिट टू इट ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली कॉन्ग्रुएंट. तो एक साइड और एक भाई साहब एडजेसेंट साइड मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ, और एक ऑपोजिट ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली कॉन्ग्रुएंट टू द ऑपोजिट साइड. तो समझो भाई साहब यहाँ पे एक साइड हमने ले लिया AB और ये PQ, ये बराबर है. ठीक है, और ये दिया हुआ है बराबर एडजेसेंट टू इट, कोई भी एक एंगल समझ लो ये एडजेसेंट एंगल, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और एक एंगल ऑपोजिट मतलब C और R. ठीक है, C और R, समझ में आ रहा है? इस साइड का एक एडजेसेंट एंगल और एक ऑपोजिट एंगल, ऑब्वियसली इन दोनों में से कोई एक एडजेसेंट एंगल तो हो ही जाएगा. तो आप इसको मोटे मोटे तौर पे ये समझो कि एक साइड और कोई भी दो एंगल अगर इक्वल होते हैं तो भी हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं बाय SAA क्राइटेरिया, दैट इज साइड एंगल एंगल क्राइटेरिया. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके. तो समझो यहाँ पे साइड AB और साइड PQ कॉन्ग्रुएंट, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, एंगल ये आपको दिया हुआ है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ये भी आपको दिया हुआ है. तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय SAA टेस्ट. इस टेस्ट से भाई साहब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, ओके. SSS क्राइटेरिया मतलब क्या हो जाएगा? सिंपल,
3 sides of one triangle are congruent to the 3 sides of the other triangle, तो ये हो जाएगा आपका SSS क्राइटेरिया, ठीक है। 3 sides of one triangle are congruent to the 3 sides of the other triangle, then it is called SSS क्राइटेरिया, ठीक है। तो यहाँ पे when 3 sides of one triangle are congruent with the corresponding 3 sides of another triangle, then the 2 triangles are congruent। तो आपका ये हो गया भाई साहब 3 sides of one triangle, ये एक साइड, 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 ठीक है। तो अगर ए बी, तो आपका यहाँ पे गिवन क्या क्या है देखो, इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी क्यू, ठीक है। देन वी हैव व्हाट भाई साहब, साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू आर, एंड देन वी हैव व्हाट, साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी आर, साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी आर, ठीक है। तो ये गिवन है भाई साहब, तो अपन क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, SSS टेस्ट, ठीक है। ओके, RHS रूल भाई साहब क्या है, ये आपका 5th रूल है। तो अगर दो ट्राइंगल्स हैं जो राइट एंगल हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली राइट एंगल दोनों में होना चाहिए। अगर हाइपोटेन्यूज दोनों का बराबर है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट वी मीन बाय हाइपोटेन्यूज। सो इफ दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल पीपल, दिस विल बी इट्स हाइपोटेन्यूज, एंड और कोई जो एक दूसरा साइड, ठीक है। तो राइट एंगल ऑब्वियसली यस, hypotenuse, ठीक है, and if one side of a right angle triangle are equal to the right angle hypotenuse and one side of another triangle, then these two triangles are congruent। तो ये दोनों triangles क्या हो जाएंगे भाई साहब, congruent। Two right angle triangles are congruent, दोनों भी right angle होने चाहिए। If the hypotenuse and side of one triangle, if the hypotenuse and one side of a triangle are congruent to the hypotenuse and corresponding side of the other triangle, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बराबर और ये राइट एंगल बराबर हो गया, ठीक है। तो ये इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 90, हाइपोटेन्यूज ए सी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज पी आर, ठीक है। तो साइड बी सी इज इक्वल टू साइड क्यू आर हो गया, साइड बी सी और साइड क्यू आर। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। SAS ASA और आपके 5, ठीक है। SAS क्राइटेरिया क्या है, SAS क्राइटेरिया साइड एंगल साइड हो गया, ठीक है। ASA क्राइटेरिया क्या है, एंगल साइड एंगल हो गया, एंगल साइड क्या हो जाएगा, और भाई साहब आपका SSS क्राइटेरिया, और ये हो गया आपका RHS क्राइटेरिया, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल, ठीक है। SAS मतलब साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड, SSS मतलब हो गया साइड साइड साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। इन अ क्वाड्रिलैटरल ABCD, आपका देखो एक क्वाड्रिलैटरल दिया हुआ है ABCD, ABCD क्या क्या बराबर दिया हुआ है देखो, AC और भाई साहब AD ये बराबर दिया हुआ है, ठीक है। AB बाइसेक्ट्स एंगल A, तो AB क्या कर रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, बोलो, ठीक है। ओके, शो दैट ट्राइंगल ABC, अभी देखो ऐसे सवालों में ना आपको दिया हुआ है इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां पे आपको दिया नहीं रहेगा वहां पे आपको सीक्वेंस को अच्छे से ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन यहां पे क्या लिखेंगे बोलो, इन ट्राइंगल्स ABC एंड ABD, बोलो भाई साहब क्या क्या बराबर हो जाएगा, ABC, अभी देखो ABC ये वाला ट्राइंगल और ABD, यहां पे आपको जो सीक्वेंस दिया रहेगा ना, पहली बात तो उसी को अडॉप्ट कीजिए, और अगर आपको सीक्वेंस नहीं दिया तो आपको बेसिकली लिखना पड़ेगा सीक्वेंस, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट, यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या है भाई साहब आपका AD, ये भाई साहब दिया हुआ है आपको, गिवन है, दिस इज गिवन है कि नहीं भाई साहब, ओके। और बोलो क्या है, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, ऐसा लिख सकते हैं, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। रीजन क्या हो जाएगा, AB बाइसेक्स एंगल A, AB बाइसेक्स एंगल A, और क्या होगा बोलो, और कौन सा, अब भाई साहब AB इस ट्राइंगल का पार्ट है और AB इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AB भाई साहब, ठीक है। इसको अपन क्या लिखेंगे, कॉमन साइड, दिस इज नोन एज कॉमन साइड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। रीजन बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल
साइड, ठीक है, SAS, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। तो यहां पे इन ट्राइंगल एबीसी AC इज इक्वल टू AD, CAB इज DAB, तो आपका ABC और ABD, तो BC और BD हो गया भाई साहब, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो अपन एक बार प्रूव कर दिया अपन ने, ठीक है। तो अपन इसके बाद क्या बोलेंगे, तो अभी क्या हो जाएगा बोलो, ये वाला साइड इसके बराबर, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये वाला एंगल इसके बराबर। समझ में आ रहा है भाई साहब? हाँ हाँ, बता रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स को अपन ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। तो अभी अपन क्या बोल सकते हैं, ऐसा यहाँ पे सवाल पे नहीं पूछा है, लेकिन वी कैन नाउ से दैट BC विल बी इक्वल टू BD। अभी ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रहा हूं आपको, BC इज इक्वल टू BD। रीजन हो जाएगा, CBSE वाले रीजन लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। CBSE वालों के लिए चाहे साइड हो चाहे एंगल CPCT लिखते हैं, आप लोगों के लिए आप लिखेंगे स्टेट बोर्ड वाले कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये क्या है भाई साहब, आपके साइड्स हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके। और क्या बोल सकते हो, बोलो, ये वाला एंगल बोल सकते हैं अपन इक्वल है एंगल CBA DBA, एंगल DBA, CBA और DBA बराबर, ठीक है। इसको अपन क्या लिखेंगे, CBSE वाले सेम लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। स्टेट बोर्ड वाले यहाँ पे लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। जहां पे एंगल और एंगल को इक्वल बोल रहे हैं वहां पे आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखेंगे, जहां पे साइड और साइड को इक्वल बोल रहे हैं वहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया, ठीक है। CBSE वालों के लिए सहूलियत है कि दोनों के लिए आप CPCT लिख सकते हैं। चलिए, ABC इज अ क्वाड्रिलैटरल, ABCD एक क्वाड्रिलैटरल है भाई साहब, इन विच AD इज इक्वल टू BC, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। आपको ये सारे प्रूव करने हैं, चलिए फटाफट करना है, फटाफट। हो गया, डन। क्वाड्रिलैटरल ABCD दिया हुआ है, देखो, ठीक है। आपको पहले तो ट्राइंगल ABD और BAC इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। चलिए भाई साहब देख लेते हैं, इन ट्राइंगल्स कौन कौन से, ABD एंड BAC, ABD एंड BAC, मुझे बताइए क्या क्या बराबर हो जाएगा। यहां पे दिया हुआ है आपका AD इज इक्वल टू BC, ये आपका क्या है भाई साहब, गिवन, ठीक है, ये तो गिवन दिया हुआ है AD और BC भाई साहब। अच्छा एक चीज और, इसके नीचे इसके साइड्स और एंगल्स होंगे, इसके नीचे इसके साइड्स और एंगल्स होंगे, उल्टा पुल्टा मत लिखना, ठीक है। इन ट्राइंगल्स ABD एंड BAC बोला है आपने, तो जिस सीक्वेंस में आपने ट्राइंगल्स को लिखा है उसी सीक्वेंस के नीचे आपको साइड्स और एंगल्स को भी लिखने हैं, ठीक है, ओके। AD और BC बराबर, अभी और क्या बराबर हो जाएगा बोलो, यहाँ पे एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये भी भाई साहब क्या है आपका गिवन दिया हुआ है भाई साहब, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है
DAB और CBA बराबर है, देखो यहाँ पे गिवन दिया हुआ है ना, ये तो आपको गिवन दिया हुआ है, ये भी आपको गिवन दिया हुआ है, इसलिए आपने गिवन लिख दिया। और बोलो क्या बराबर हो जाएगा, दोनों में AB आ रहा है, तो AB दोनों में है भाई साहब, तो AB इज इक्वल टू AB, और ये रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन साइड, इसको अपन बोलेंगे कॉमन साइड, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो गया, बोलो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, रीजन क्या हो जाएगा, SAS, साइड एंगल साइड, ठीक है। देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, क्योंकि ये साइड तो दोनों में बराबर है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। अभी BD इज इक्वल टू, तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे BD, इसको क्या लिख सकते हैं, BD और AC बराबर लिख सकते हैं कि नहीं भाई, इसका रिजल्ट ही यही हो जाएगा ना, BD इज इक्वल टू AC, रीजन CBSE वाले लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, स्टेट बोर्ड वाले लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, बस इतना ही फर्क है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। चलिए भाई साहब ये वाला भी हो गया। अभी आते हैं किसमें, एंगल ABD, एंगल ABD, तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, है ना। इस ट्राइंगल में, कौन से ABD में, कौन सा ट्राइंगल ABD, भाई इन दोनों ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है ना, तो अब बस यहाँ पे लिखना है आपको एंगल ABD, ऑब्वियसली बात है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा, विल बी इक्वल टू एंगल BAC, रीजन क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट, कौन से भाई साहब, AB, ठीक है। AB भाई साहब यहाँ पे देखो AB है, इस पे एक परपेंडिकुलर और इस पे एक परपेंडिकुलर, AD, ठीक है भाई साहब, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, AD एंड BC, तो AD और BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, इक्वल परपेंडिकुलर मतलब ये और ये आपका बराबर होगा, इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट, कौन सा भाई साहब, AB, ये लाइन सेगमेंट AB है, शो दैट CD, ये जो CD है ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब आपको क्या प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट CD, टू प्रूव यहाँ पे क्या है भाई साहब, टू प्रूव CD bisects AB, which means क्या हो जाएगा बोलो, CD bisects AB मतलब CO और DO बराबर होगा, ठीक है, CD bisects AB which means CO and DO are equal, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके। चलिए भाई साहब कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे इन ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स, कोई भी ट्राइंगल ले लो भाई साहब, देखो आपको सीक्वेंस यहाँ पे देखो ट्राइंगल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो अभी आपको सीक्वेंस को देखना पड़ेगा, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा भाई साहब, होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो आपने O इधर लिख दिया और O इस वाले ट्राइंगल में लिख दिया। अब आते हैं इसमें, देखो ये A और ये B बराबर होगा क्योंकि दोनों 90 के हैं, तो इस ट्राइंगल में आपने A को सेकंड में लिखा और B को यहाँ पे सेकंड में लिखा। अब थर्ड वाले को कहीं भी लिखो, ठीक है, थर्ड वाला इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, OAD, और थर्ड वाला उस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, OBC, ठीक है। क्या हुआ, कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारा सीक्वेंस सही होना चाहिए, अगर तुमने O से स्टार्ट किया तो इधर भी O से स्टार्ट करो, इधर तुमने A को मिड में लिखा है तो B को मिड में लिखो और D वाला छोड़ दो, D और C, ठीक है।
तो ये आपका सीक्वेंस हो गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सीक्वेंस को समझने की कोशिश करो। हाँ, आप यहाँ पे लिख सकते हैं BCO, ऐसा कुछ नहीं है, BCO भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने B को पहले लिया है तो इधर आपको किसको पहले लेना पड़ेगा, A को। C के साथ आपका कॉरेस्पॉन्डेंस अभी तक मालूम नहीं है, इसलिए जिसके साथ आपका नहीं मालूम है ना उसको लास्ट में रखा करो, ठीक है। उल्टा ऐसा ले लो, देखो BOC ले लो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, O के साथ O तो AOD, इसको अपन बाद में लगते हैं क्योंकि इसका अपने को मालूम नहीं है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो एंगल्स OAD एंड OBC, बताइए क्या क्या बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है BC इज सॉरी, ठीक है, एंगल OAD एंड, तो आपका भाई साहब यहाँ पे बराबर हो गया AD इज इक्वल टू BC, ठीक है, AD इज इक्वल टू BC, ये आपका गिवन कंडीशन है भाई साहब। और क्या है बोलो, एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC एंड दैट इज व्हाई बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्रीज। और क्या बराबर है भाई साहब, व्हाट एल्स इज इक्वल, हाँ, तो यहाँ पे एंगल COB, देखो COB विल बी इक्वल टू DOA, एंगल DOA, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है भाई साहब, क्लियर है भाई साहब। ये दोनों क्या हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए कि नहीं, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो कौन सा कंडीशन बन रहा है यहाँ पे, एंगल साइड, ठीक है। तो देयरफॉर अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पे सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ट्राइंगल OAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBC, ठीक है, ट्राइंगल OAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBC। यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा बोलो, एंगल साइड, ठीक है। अभी अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर OB इज इक्वल टू OA, सो देयरफॉर हम यहाँ पे OA को देखो, OA और ये OB दे विल बी इक्वल, OA इज इक्वल टू OB। भाई साहब CBSE वाले लिखेंगे CPCT और स्टेट बोर्ड वाले लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वनम पीपलम। तो यहाँ पे भाई साहब ये बराबर हो गया इनटू प्रूफ, तो आपका AOD और BOC, ठीक है, AD और BC बराबर, तो ट्राइंगल सिंस CD बाई 6, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट क्विक एवरीवन। Okay, L and M are two parallel lines. L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC and CDA are congruent. ABC and CDA are congruent. ये आपको दिखाना है भाई साहब, congruent है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भाई साहब देखो, ये वाला इन कौन सा ट्राइंगल्स, देखो हमको दिख ही रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, क्यों बताओ, Z बन रहा है, ये क्या बन रहा है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, क्लियर है, ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। और बोलो भाई साहब, और क्या बराबर हो सकता है, व्हाट एल्स कुड बी इक्वल, हाँ, AC कॉमन लिया, चलिए फिर आगे, ये वाला देखो, ये वाला लाइन भी तो पैरेलल है ना, तो ये Z बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया, तो आपका एंगल बराबर और साइड बराबर। ये पहले ही रफ में कर लेना ताकि तुमको भाई साहब यहाँ पे सीक्वेंसिंग में तकलीफ ना हो। तो एंगल ACB लिख दिया मैंने, एंगल A इन ट्राइंगल्स ACB, A के साथ कौन सा एंगल बराबर है, देखो यहाँ पे C है ना, एंड C कौन सा, फिर यहाँ पे C के साथ कौन बराबर है, यहाँ पे C के साथ कौन बराबर है, A, CAD। सीक्वेंसिंग सही होनी चाहिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं भाई साहब जो दिया हुआ है आपको,
ठीक है, जो दिया हुआ है वो उतार लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें एरर नहीं रहेगा। स्कोप इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड सी डी ए, तो इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड सी डी ए क्या क्या बराबर हो जाएगा बोलो? एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी will be congruent to angle BAC will be congruent to angle DCA, एंगल DCA, ठीक है। ये हो गया आपके क्या भाई साहब? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हो गया, ठीक है। एंगल BAC विल बी इक्वल टू एंगल DCA, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। और क्या हो जाएगा बोलो आपका? एंगल ACB, एंगल ACB will be congruent to, एंगल ACB will be congruent to किसका भाई साहब? CAD, एंगल CAD। ये भी आपके क्या हो गए? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए भाई साहब, ठीक है। ओके, और बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा? AC will be equal to AC, वाई? ये हो गया आपका कॉमन साइड, ठीक है। So therefore triangle ABC is congruent to triangle CDA। ट्राइंगल ABC और CDA आपका क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ट्राइंगल ABC और CDA आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? सो दैट, और रीजन क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे? एंगल 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 साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो ये हो जाएगा आपका ASA। ये रीजन आपको लिखना पड़ेगा, हर बार आपको रीजन लिखना पड़ेगा। फॉर इवन गिवन कंडीशंस यू हैव टू स्पेसिफाई द रीजन, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।